ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने देखा था टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ मिरर। सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? पार्ट्स ऑफ मिरर से हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। सो बिफोर वी आर स्टार्टिंग पार्ट्स ऑफ मिरर, वी विल ड्रॉ वन फिगर। Okay. These are the incident rays. These are the incident rays on the mirror. कल भी मैं आपको कहा था कि एरोज आर मोस्ट इंपोर्टेंट इन दिस चैप्टर बिकॉज दे शोज द डायरेक्शन ऑफ द रे। वो क्या करेंगे? रेस की डायरेक्शन शो करते हैं कि रे कहाँ से आ रहा है। नाउ आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे मीट एट वन पॉइंट हियर। So here is the center of mirror P, aperture M dash. That point is called focus point. F is called C. So what are the parts of mirror? What are the parts of mirror? मिरर के कितने पार्ट्स है? तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, बात करेंगे फोकस पॉइंट। किसकी बात करेंगे? फोकस पॉइंट। Second one is center of curvature called COC. Third one is pole. Third क्या है? Pole. Fourth one is principal axis. And fifth one is radius of curvature. Fifth one is radius of curvature. And the last, sixth, focal length. क्या होगा? Focal length. So these six are the parts of mirror. So first is focus point. Second one is center of curvature called COC. Third one is pole. Fourth one is principal axis. Fifth one is radius of curvature. We can write ROC here. And then focal length. सिक्स्थ क्या है? फोकल लेंथ। तो आज हम इस छह की जो छह पार्ट्स ऑफ मिरर है उसके क्या देखेंगे? डेफिनेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? डेफिनेशन देखेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द प्रिंसिपल एक्सिस। वी विल स्टार्ट विद द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पोल। ओके, as you can see in the figure, so what is pole? What is pole? So pole is the center of mirror. Center of mirror. Look here. Pole is the center of mirror. Pole क्या है? Center of mirror. Next, principal axis. Now, as you can see, the line drawn by the blue marker, it is a principal axis. वो क्या है? Principal axis, and it is an imaginary line passing through pole. It is an imaginary line. प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल। वो पास कहाँ से होती है? तो पोल में से पास होती है। एज यू कैन सी, जब हम देखेंगे व्हाट इज फोकस पॉइंट, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, देन यू कैन सी, देन
यू कैन सी दैट कि प्रिंसिपल एक्सिस की तीन डेफिनेशन हो सकती है। सबसे पहले क्या है, इट इज पासिंग, इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल। यू कैन से दैट इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट, पोल एंड center of curvature and center of curvature. Now next one is focus point. After the reflection, all the incident rays meet at one point. This point is called focus point. This point is called focus point. So students, here you can see what is focus point. It is denoted by capital F. It is denoted by capital F. After the reflection, all the incident rays. So here you can see these are the black lines are the incident rays coming from the infinity, and आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ब्लैक लाइंस जो है वो हमारे रेज जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटीज, and after the reflection they all are meet at one point. They all are meet at one point. It is called a focus point. It is called a focus point. Now we can move further. Focal length. What is focal length? The distance between focus point to pole. Focus point से लेके पोल तक का डिस्टेंस here you can see ये जो डिस्टेंस है ये ना F to P के बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या कहें, the distance between focus point and pole is called focal length. It's called focal length, and the focal length is denoted by small f. It is denoted by small f. Okay. Now we will go further. Thereafter we can see 1, 2, 3 कितने पार्ट्स हमने सीखे, 3 सीखे। कौन से कौन से सीखे, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ। अब हम देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या देखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। Center of curvature. Before we will start center of curvature, I will give you one example. Look here you can see this is a sphere. ये क्या है, sphere है। क्या है, sphere. Now मैंने आपको बताया था what is spherical mirror. What is spherical mirror? कि हमारे पास क्या है, एक sphere है, तो उस sphere को काट के हमने क्या बनाया, mirror बनाया। क्या बनाया, mirror. And here you can see it is a concave mirror. ये कौन सा mirror है, concave mirror। कौन सा mirror है, concave mirror है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक sphere है। क्या है, एक sphere है। हम क्या करें, सपोज का बेस स्फीयर का क्या होगा, सेंटर होगा। क्या होगा, स्फीयर का क्या होगा, सेंटर होगा। तब ये सेंटर जो है इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। सपोज अब हम यहां से इसको कट कर देंगे ऐसे, तो ये जो पोर्शन है ये वाला, तो ये हमको मिल जाएगा कुछ इस तरह से। ये यू कैन सी ये हमको यहाँ मिल जाएगा इस तरह से ये पोर्शन। तो ये स्फीयर को काटने से ये पोर्शन जो है हमको कुछ इस तरह से मिलेगा, जो कि वो हमारा मिरर है। ओके ना, सो हम बोल सकते हैं कि मिरर का जो सेंटर होगा, मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये कर्वेचर का सेंटर कौन सा होगा, कि जो सेंटर इस स्फीयर का है वही सेंटर इस कर्वेचर का होगा। It means suppose if we are drawing a
फुल स्फीयर लाइक दैट, तो इसका क्या होगा, सेंटर होगा। तो यही सेंटर जो है वो हमारा कर्वेचर का होगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ we'll move on the next, radius of curvature. It is denoted by capital R. It is denoted by capital R, radius of curvature. So what is radius of curvature? The distance between center of curvature and pole. So the distance between center of curvature and pole, it is called radius of curvature. It is called a radius of curvature. उसे हम क्या बोलेंगे, radius of curvature. तो यहाँ पे हो गए हमारे 6। सबसे पहले हमने क्या देखा, पोल। 1 सेकेंड, फर्स्ट सबसे पहले हमने क्या देखा, पोल। इट इज द सेंटर ऑफ मिरर। पोल क्या है, सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ मिरर। देन आफ्टर वी विल गो ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। देखो प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, वो रियल में एग्जिस्ट करती नहीं है। वो क्या है, इमेजिनरी लाइन है। वो क्या है, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल, सॉरी, द पासिंग थ्रू द पोल, focus point and center of curvature. You can write any of one. Now then after focus point, what is focus point? After the reflection, all the incident rays meet at one point. After the reflection, all the incident rays meet at one point. This point is called focus point. उसे क्या बोलेंगे हम, focus point, and it is denoted by capital F. Now the distance between focus point to the pole, pole, it is called focal length. So क्या बोलेंगे हम, focal length of the mirror, and it is denoted by small f. It is denoted by small f. उसके बाद हम बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बात करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? तो जिस स्फीयर में हमने हमारा मिरर बनाया है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। वही जो स्फीयर का सेंटर है वो हमारे मिरर का क्या होगा, सेंटर होगा। And the last, radius of curvature. क्या है radius of curvature? It is denoted by capital R, and the definition is the distance between center of curvature and pole. It means कि center of curvature से लेकर pole तक का जो distance होगा उसे हम क्या बोलेंगे, radius of curvature. उसे क्या बोलेंगे, radius of curvature. So यहाँ पे parts of mirror जो है वो खत्म होता है। आप लोग लिख सकते हो। आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, parts of mirror आप नोट डाउन कर सकते हो। सो आफ्टर दिस वी विल गो फर्दर। हम क्या करेंगे, हम आगे देखेंगे। और हम क्या देखेंगे, वी विल गो ऑन द इमेज फॉर्मेशन। क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन। क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर। सो बिफोर वी स्टार्ट इमेज फॉर्मेशन, आपको यह सीखना जरूरी है कि अगर रे जो है वो पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ से पास होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर वो फोकस में से पास होगा तो वो कहाँ से पास होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे। उसके बाद जो है उसका यूज करके हम क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन। क्या देखेंगे, इमेज formation here. First one is when light ray pass sorry, we can write it in short. Parallel to principal axis. Can write it short, parallel to principal axis. So हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिरर लेंगे।
देखो इतनी चीज़ें ज़रूरी है, मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, एपर्चर एंड रेडियल पोल, ये हो गया पोल। तो हम देखेंगे अगर हमारा जो इंसिडेंट रे है वो ये यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इतनी चीज़ें ज़रूरी है मिरर के अंदर बनने में। तो हम देखेंगे अगर हमारा लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, कहाँ आता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहाँ आएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट, वो कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब भी हमारा कोई लाइट का रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आएगा तो वो पास कहाँ से होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट। सो यू कैन ड्रॉ इट डाउन ऑल्सो। Okay, now second, through the focus point, through the focus point. So again we will draw one mirror, pole, principal axis, F, near C, क्या है? F and C। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अगर कोई रे जो है वो कहाँ से पास होगा? फोकस पॉइंट से पास होगा। कहाँ से पास होगा? फोकस पॉइंट से। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो विल ड्रॉ लाइक दिस, दिस पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट इंसिडेंट रे, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज गोइंग टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इसका उल्टा, अगर पैरेलल आया है फोकस से पास होगा, अगर पैरेलल आया है तो फोकस से पास होगा, और अगर फोकस में से आता है तो कहाँ से पास होगा? पैरेलल जाएगा। कहाँ जाएगा? पैरेलल जाएगा। सो विल मूव ऑन द थर्ड थिंग। थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले मिरर लेंगे, ओके, देन आफ्टर अगेन प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, एम डैश। देखो कभी कभार हमसे भी गलती होती है, यहाँ पे एम डैश हमने छूट गया था लिखने के लिए, तो आप भी एग्जाम में ध्यान रखना, और जब हम कोई भी आंसर लिख रहे हो तो आप ध्यान रखना। सी एंड हियर इट इज एफ। तो अब हमारा जो रे है लाइट का वो कहाँ से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। कहाँ से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। सो ओके, ये रहा। wherever the incident rays is passing through the center of curvature after the reflection, वो कहीं और नहीं जाएगा, वो कहाँ से जाएगा? वो वापस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा, जहाँ से वो आया है तो वहीं से क्या जाएगा? वापस जाएगा। सो इट इज अ वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। एंड द लास्ट वन इज इंसिडेंट incident with angle. You can write it incident with angle. Incident with angle. So again, we'll draw a mirror, pole, M dash, principal axis. Then, if the light ray is incident through angle, you can use scale
पेंसिल तो जितने एंगल से आया है वो उतने ही एंगल से क्या होगा, वापस जाएगा। क्योंकि कल हमने देखा था कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन एंगल, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन एंगल। हमने कल क्या देखा था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने उसमें कल देखा था। तो यहाँ पे भी सेम होगा कि अगर कोई हमारा इंसिडेंट विद एंगल, ये जो है इससे क्या होगा, अगर कोई इंसिडेंट रे जो है वो एंगल से आता है तो उसी एंगल से कहाँ जाएगा, वापस जाएगा। तो ये इन चार चीज़ों का यूज़ करके 1 2 3 एंड 4 इन चार चीज़ का यूज़ करके हम क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। व्हाट वी कैन स्टडी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। तो एक और बात, सबसे पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई भी रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो कहाँ से पास होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से। कहाँ से पास होगा, फोकस में से। सेकेंड थिंग, थ्रू द फोकस पॉइंट, अगर कोई भी लाइट का रे जो है वो इंसिडेंट होता है, फोकस से इंसिडेंट होगा, देन आफ्टर कहाँ से पास होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड, थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई लाइट का रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है तो पास कहाँ से होगा, अगेन आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर से ही पास होगा। फोर्थ, इंसिडेंट विद एंगल, अगर कोई लाइट का रे जो है वो एंगल से इंसिडेंट होगा, कहाँ से इंसिडेंट होगा, एंगल से इंसिडेंट होगा, तो पास कहाँ से होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी एंगल से वापस जाएगा। ओके, सो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, कल देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। हैव अ गुड डे।